called fuel injection system. I think every one of you is familiar with this topic. You've heard this word in which subject? Yes, sir. You've heard this in which subject? Fuel injection system. You must be hearing this word in the subject called IC engine and gas turbines. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the 6th semester, you might be read, right? So let us revise once again, because it is a very important topic which is needed to be covered in our very second module called prime movers. So let us go through that. So just wait, I'm sharing that notes. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. It is visible, na? So the topic for today's class is fuel induction system for SI engines, basically. Okay, let us start. How does the injection of fuel takes place in SI engines? The full form of SI engine is what? It is simply spark ignition engine. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us move further. The task of engine induction and fuel system is to prepare from ambient oil and fuel in the tank and an air fuel mixture that satisfies the requirement of the engine. I think everyone must agree with this statement. This is the purpose of fuel injection system, to obtain the combination of air and fuel mixture which is needed to be satisfied and which is required to be supplied inside the combustion chamber of a IC engine. Okay, so let's move further. This preparation is to be carried out over entire engine operating regime. Okay, now in principle, the optimum air fuel ratio for an engine is that which gives the required power output with the lowest fuel consumption. That's why nowadays new technology and new injection system has been introduced, so that the mileage of the vehicle can be increased, so that we can attain optimum air fuel ratio. That only is the purpose. तभी हम ले सकते हैं ना, तभी हम माइलेज बढ़ा सकते हैं गाड़ी का. Yes, sir. Okay. Moving further. It should also ensure smooth and reliable operation. The fuel injection system for SI engines are classified as carburetors. In the initial days, now also we are having many vehicles present which are using carburetors. Which vehicles are using carburetors nowadays? BS6, sir. BS6 are using carburetors? No, sir. Fuel injectors, No, sir. sir. No, sir. Before Fuel BS4 and injector. BS6, we are using carburetors, sir. Till which BS stage we have used carburetors in our vehicles? Sir, Sir, BS4, I think. 3. Sir, Yes, BS4. 3, 4. Till BS4 we have used carburetor as a system of fuel injection in our vehicles, and after BS4 we have not gone through BS5. It has directly introduced BS6 in our BS6, system. sir. Okay, so that BS6 is not having carburetor as its part. We are having fuel injection system. We are having basically injectors. You might have heard these words: injector, fuel injector, right? It is a very advanced form of carburetor. Basically, it is the same function which the carburetor performs, but in a different way. Okay, we will go through how it works. And the next is throttle body fuel injection system. This we are using nowadays. So this was the previous technology, and this is the latest technology which we are using, which is known as throttle body fuel injection system. So basically, we should know our previous study, we should know our previous concepts, based upon which the advancement takes place. जिसके ऊपर में नया एडवांसनेस होता है तो हमें पुराना चीज़ों को भी जानना जरूरी होता है. For that purpose, basically we should know how does basically a carburetor works, and when we will be familiar with the operation system of the carburetors, then we will move ahead and we will try to understand how does the
total body fuel injection systems basically operates and works. Okay, so let us start with carburetor and fuel injection system. We are having very important one system that is called multiple point fuel injection system. What is this all about? Any idea of multiple point fuel injection system? Have you heard this system? सर जहाँ से ये फ्यूल का सेकेंडरी में इंजेक्ट करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स इंजेक्ट मल्टीपल इंजेक्ट होगा वो इंजेक्ट। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. दिस इज सिस्टम इज बेसिकली ऑफ सिंगल टाइप, बट व्हेन वी यूज दिस सिस्टम इन मल्टीपल टाइम देन इट बिकम्स मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. ठीक है, तो हाई कैपेसिटी व्हीकल्स में इसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज द फ्यूल इंजेक्शन रैपिडली. क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन अगर सिंगल सिस्टम से होगा तो वॉल्यूम तो हमको कम देंगे ना, तो पावर जनरेशन विल बी स्मॉल. बट इफ यू नीड हाई पावर जनरेशन एट ए इंस्टेंट, then we need much more fuel to be injected instantly. Am I right? Yes, sir. Now for Yes, that sir. purpose, what we are using सिलेंडर multiple बढ़ाते point. होंगे तो फ्यूल इंजेक्टर भी बढ़ा देते हैं। क्या क्या फिर से बोलो सर सिलेंडर का जो है वो कैपेसिटी बढ़ता होगा तो फ्यूल इंजेक्टर का भी पॉइंट बढ़ता होगा। हाँ ठीक है, तो let us move further. See, this is the basic diagram of a carburetor. I think if you can remember, this has been taught in your IC engine subject. How Yes, does it sir. works? This is the basic Yes, sir, diagram yes. of a carburetor. सबको याद है ना? Yes, sir. यस सर। यस इसको सर याद रखोगे हमेशा, क्योंकि इसी पे एडवांस होके इंजेक्शन सिस्टम बना है. ठीक है, तो हाउ डज इट इज वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? हाउ डज द फ्यूल गेट इनसाइड दिस? हाउ वी आर गेटिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर? कैन एनीवन एक्सप्लेन? See the diagram, if anyone can remember. It is very simple concept and simple working procedure. Yes, sir. बोलो, किसी को याद है तो बोलो, एक रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन. सर इसमें इसमें फ्यूल सर होता है फिर सर ऊपर से एयर आता है सर. एक एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर इसमें ऊपर से एयर आता है सर, और एयर का इसका कंप्रेसर का इसका शेप इस तरह का है सर कि जो नीचे आते आते एयर कंप्रेस कर जाता है. इसके कारण सर जो फ्यूल रिजर्वर में होता है सर, वहाँ से ये फ्यूल उठाता है और ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर से तो सर ये नीचे इंजन के पास जाता है. और टोटल का काम सर कितना कैपेसिटी में इंजन को ये फ्यूल पहुँचाना सर, उसका काम रहता है सर टोटल का. Okay, very nicely explained, but you missed one thing. How the fuel comes from the fuel tank inside the carburetor? What is that procedure? अपने आप फ्यूल आ जाएगा क्या वहाँ पे? वहाँ तो कुछ तो हो रहा है. सर Something is happening over there in the Venturi area. So because the shape of the compressor sir. Yeah, compression is generating, but due to the compression, what next thing is happening, which is the ultimate result for suction of fuel? देखो यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ नहीं रहता है कार्बोरेटर के अंदर में, कोई पंप नहीं होता. ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जिसके वजह से हमारा फ्यूल यहाँ टनाता है, सक किया जाता है. एयर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग, बोथ गेट मिक्स्ड एंड देन फाइनली इट इज सप्लाइड टू द combustion chamber. So what is the ultimate reason for which the fuel is getting inside the carburetor? Venturi area. सोचो, थोड़ा सा सोचो. Everything you said is correct. You have missed just one thing. सर जो एयर है ना वो एनवायरनमेंट से लेता है, तो बात फ्यूल एनवायरनमेंट से ही लेगा ना बाबू, कहाँ से लेगा बताओ? एक चीज मिस, मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा सबको. थोड़ा सा सोचो. सर दिमाग में सर याद नहीं आ रहा. देखो, no one. See, when the air is coming from the atmosphere, you can see my cursor. Yes sir. See, when the air is coming, this is the surrounding part. यहाँ surrounding से यहाँ से हमारा air enter कर रहा है. And when it is going through Venturi, it get compressed. It generate high pressure will generate करता है, pressure बढ़ने लगते हैं यहाँ पे आते आते. And due to this pressure here, vacuum is created. यहाँ से जब क्रॉस करेगा ना, यहाँ वैक्यूम क्रिएट करता है. एंड दैट वैक्यूम इज ओवरकम्ड बाय आवर नेचुरल लॉ दैट नथिंग कैन बी लेफ्ट वैक्यूम इनसाइड आवर एटमॉस्फेयर. कहीं पर भी वैक्यूम रहेगा उसको नेचर हमारा ओवरकम करने की कोशिश करता है, वैक्यूम होने देता नहीं है.
तो जो वैक्यूम क्रिएट उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे और क्या फैसिलिटी, यहाँ से तो हवा आ रहा है, यहाँ और क्या अवेलेबल है, यहाँ फ्यूल अवेलेबल है। वही फ्यूल उस वैक्यूम प्रेशर की वजह से यहाँ टनाकर यहाँ आकर यहाँ सक्शन क्रिएट होता है, उस वैक्यूम की वजह से फिर ये आकर हमारा एयर के साथ फ्यूल मिक्स हो जाता है। So we are having a vacuum atmosphere which is responsible for suction of fuel from the fuel tank. This is the main reason of suction. And after that the fuel get mixed with the air, and then air fuel mixture get inside the air or carburetor chamber where it gets burned, and our motive is fulfilled. ठीक है, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा कार्बोरेटर का। तो मैंने बताया था कि जस्ट सब कुछ ठीक बोले, बस एक वर्ड यू हैव मिस्ड, दैट वर्ड वाज वैक्यूम, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम प्रेशर। Okay, let us move further. See, we can see 4 different type of gasoline injectors which we are using nowadays. These 4 are the different companies which manufacture. Sir, someone this. is your lobby, sir. Huh? Someone is your lobby, sir. Someone in the lobby, just wait. Okay. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay. See, this is the basic diagram of gasoline injectors which we are using nowadays in our BS6 engines. So this is the how it resembles. ऐसा दिखता है, हम लोग को दिख रहा है. These are the different companies which manufactures different structure of gasoline injectors. Bosch कंपनी इस तरह का बनाती है, डेनको इस तरह का बनाता है, सीमेंस इस तरह का बनाता है, डेल्फी इस तरह का बनाता है. तो वी विल फाइंड द मैक्सिमम थिंग विच वी यू आर यूजिंग नाउडेज, जो सबसे ज़्यादा यूसेज में है, तो देखोगे बॉस कंपनी का इंजेक्टर यूज कर रहे हैं मैक्सिमम व्हीकल्स. Yes, sir. Maximum vehicles nowadays in India is using huge quantity of Bosch company made injectors, which we will see in our BS6 engines vehicles which are coming nowadays. Now अभी अगर हम लोग Bosch यूज कर रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसका बेसिक इंटरनल फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है. लेट अस गो थ्रू दैट. This is the anatomy of EFI. What is the EFI full form? बेसिकली FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि ये बैटरी से कंट्रोल होता है. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अवेलेबल है, इसके अंदर में सर्किट्स अवेलेबल होता है जो इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. तो वी आर हैविंग ए वेरी एडवांस वर्जन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम नाउडेज. इसलिए वी आर, अगर सुने होगे तुम लोग, एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गया है. हैव यू हर्ड द वर्ड द ब्रांच, न्यू ब्रांच नेम मेकाट्रॉनिक्स? Yes sir, yes sir. What is that branch? उसमें क्या है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन करके पढ़ाया जा रहा है. नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट्स की तरफ से. उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, उनको मैकेनिकल के प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के बारे में भी जानना होगा, बिकॉज देयर आर मेनी पार्ट्स नाउ मैन्युफैक्चर्ड विच आर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. एंड दिस इज द वेरी मच एग्जाम्पल यू कैन सी एज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल विच वी आर यूजिंग इन आवर मैकेनिकल सिस्टम. एक गाड़ी तक मैकेनिकल सिस्टम है, तो गाड़ी के अंदर में वी आर यूजिंग ए सच अ डिवाइस विच इज मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स. दैट्स व्हाई द नेम आल्सो इज गिवन एज EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. ओके, सो नाउ ये इंजेक्शन कैसा काम करता है, यू कैन सी द पार्ट हियर. फ्रॉम हियर द फ्यूल बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम द फ्यूल टैंक. यहाँ से हमारा आ रहा है अंदर. यू कैन सी माय कर्सर? Yes, sir. Yes. Okay. See, the fuel is coming from this side, and when the fuel initially comes inside the fuel injection system injector, this would have a filter present over there. So this is called filter basket. यहाँ पे filter basket लगा हुआ रहता है, and now if further filter होता हुआ fuel हमारा अंदर की तरफ पास करता है. Sorry. ठीक है. Now यहाँ पे हमारा जब फ्यूल पास कर रहा है, फ्यूल पास होते हुए जा रहा है, तो फ्यूल को हम लोग को कितना फ्यूल इसमें देना है, कितना फ्यूल सप्लाई करना है, दैट इज ऑटोमेटिकली स्टडी बाय आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. दैट इज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज प्रेजेंट ओवर हियर. यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई है. तब जाके देखो सोलिनॉइड है जो हमारा यहाँ पे रीड कर रहा है सिस्टम है, जो कि हमारा रिटर्न स्प्रिंग को कंट्रोल करता है, इसका मूवमेंट को. दोनों तरफ देखो सोलिनॉइड लगा हुआ है जो इसको कंट्रोल करता है मूवमेंट. रिटर्न स्प्रिंग अलाउ करेगा तब हमारा फ्यूल आगे पास होगा, नहीं तो फिर उसको रोक देगा. ये हम लोग जो फ्लो को मूवमेंट को रोक रहा है,
that is done with the help of solenoid and electrical connection, which is present already inside the embedded system inside the EFI system. Now this is the injector body. ये हमारा कंबसन चैम्बर के अंदर में होता है. इसको पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेंटले वाल्व नीडल, जहां से हमारा बेसिकली फ्यूल यहाँ से होता हुआ सीधा, ये देखो सीधा यहाँ से होते हुए स्प्रे मोड में अंदर जाता है, यहाँ से और पतला हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड पिंटल हेड एंड सीट. And after that it goes inside the combustion chamber in the spray mode. यहाँ से उसको स्प्रे किया जाता है directly in the combustion chamber or the area wherever it is required to be sprayed directly. So fuel यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, it is not having the combination of air, it is a pure mixture of only fuel only. तो यहाँ पे fuel हमारा pure form में आता है और direct आके spray हो जाता है. The spray area can be direct inside the combustion chamber or in the nearest part of the combustion chamber. If we compare in the carburetor is placed very far away from the combustion chamber, right? Initially. Yes sir. But nowadays when we are having fuel injection system, it is placed at a very nearer part of the combustion chamber or it is placed directly over the head of the combustion chamber, so that maximum of fuel can be utilized simultaneously. Okay, now let us go further. हम लोग आगे बढ़ते हैं. When we have made that part EFI system, fuel injection system, when we have made, suppose it is being made by Bosch company, then it will be having some problem after some days when it will go on service. Service में जाने पर उसमें problem आ सकता है, so we are looking for its maintenance also. Can it be maintained? Can it be serviced? So what are the things which can be serviced and what are the things which cannot be serviced? Let us go through that also. We should know this also. If anything is made to give service, then we should also be aware how to make a service also for that. हम लोग से बॉडी अगर बनता है तो बॉडी का भी हम लोग सर्विस करते हैं. तबीयत खराब होता है ना बॉडी का, हम लोग दवा खा के ठीक हो जाते हैं. इसी तरह कोई भी चीज को अगर हम बनाएंगे तो उसका सर्विसिंग जरूरी होता है. सर्विसिंग देखना, can we give service backup to that part or not? Servicing is available to that part or not? So that only we are going to discuss. Now the slide is visible to all. Yes sir. Yes sir. Okay, see, let us go through. The electronic injector is a sealed unit and cannot be dismantled or have any of its internal component replaced system available. मतलब अंदर से जो हमारा बना हुआ रहता है वो completely sealed रहता है. अगर वो खराब हो इंटरनली, अगर खराब हो तो वो कंप्लीट उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दोबारा चेंज नहीं हो सकता. अंदर जो कंपोनेंट बैठा हुआ है, जस्ट लाइक एज वी आर यूजिंग स्पार्क प्लग्स. Yes डू यू रिमेंबर? Yes sir. स्पार्क प्लग का इंटरनल कंपोनेंट्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं? No sir. वो खराब होता है तो हम लोग देखो मैकेनिक क्या करता है, इनिशियल उसका इनिशियल पार्ट होता है जहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, उसको थोड़ा सा कार्बन प्रेजेंट आ जाता है, तो we remove that, we try to remove that and we try to correct it by doing just only that phenomena. And if by doing that also if it is not done, then mechanics asks us to replace the choke with a new one. It cannot be repaired again. Similarly, fuel injection system, the injection part, electronic part, cannot be replaced internally anyway. It can be replaced only externally. Externally अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है हमें तो वो हम चेंज करते हैं. एक्सटर्नली हम लोग को आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी इसमें फिल्टर बास्केट. सो दिस इज द सिंगल थिंग व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड. इसको यहाँ से खोलकर हम इसको निकाल सकते हैं. वी कैन रिप्लेस दिस फिल्टर only this part can be replaced and it can be run for some little more times. Maximum time it is asked by the serviceman that you need to change this injector directly after going to certain 1000 kilometers. 1000 kilometers जाने के बाद उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ता है, हम लोग फर्दर उसको नहीं चला सकते. इज इट ओके? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay, let us go through this next part. Only the external components and internal filter can be replaced. Just now I told you all rubber fuel and air seal should be replaced if injector are removed from the engine. Now मैंने तो अभी बताया that we have just facility available that we can just replace a internal filter from the EFI. But now here it is saying that air seal and rubber fuel, all rubber fuel should be replaced. Now where these are present? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मैं हम लोगों ने ये डिस्कस किया तो ये कहाँ पर होता है? एनी आइडिया? यू कैन रीड द स्लाइड ना, स्लाइड पढ़ सकते हो सब कोई? Yes sir.
Okay. Yes, sir. Okay. See the statement written on the slide. All rubber fuel and air seals should be replaced if injector are removed from the engine. Now here the question comes: where are these parts present in EFI, which is needed to be replaced? Any idea? Think for a while. Sir, I सोचो think in थोड़ा सा. filter, sir. हाँ? Filter. Internal filter. Filter, sir. Filter. किस फिल्टर का बात कर रहे हो? No, sir. No, sorry. No, no, you are saying filter. Which filter you are talking about? Just I want to know that. Sir, internal filter, sir. इंटरनल फिल्टर. इंटरनल फिल्टर तो बोल ही दी गया, तो बोल दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट में ना. ये दिख रहा है फिल्टर बास्केट, इसको तो हम लोग रिप्लेस कर ही रहे हैं. Yes, sir. We are replacing this part, but other than this we are required to remove this also, rubber fuel and air seals. Now where these are present? No सर idea. अपर ओरिंग सील सर. सर इंजन कहाँ पे? यहाँ पर. No, sir. Yes, After sir. that. Below that, sir. यहाँ Yes, sir. this area, this area or this area? अपर ओरिंग सील सर. ये यहाँ पे या यहाँ पे, इस एरिया में? यहाँ पे जी 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 सर. नहीं, यहाँ पे नहीं. देखो बेसिकली हम लोग जो फ्यूल इंजेक्टर लगा रहे हैं, अगर कंबसन चैम्बर में लगाएं तो एक सर्टेन पोर्ट पे प्लेस करते हैं ना, तो जिस पोर्ट पे हम प्लेस करेंगे वहाँ पे रबड़ के द्वारा उसको एयर सील किया जाता है. यस सर, ओरिंग बोलते हैं ना उसको. उसी जगह पे रिंग बोलते हैं, उसी जगह को रिप्लेस करने के लिए बोला जा रहा है. बिकॉज व्हेन वी आर रिमूविंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दैट एरिया विल बिकम फ्री and that seal will break. Yes, sir. So now to remove that seal break, we should replace with a new one, ताकि वहाँ से कोई भी लीकेज ना हो एयर का, ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क करता रहे. हम एक बार उसको वहाँ से निकाले तो लूज हो जाएगा ना, लूज फिटिंग हो जाएगा उस जगह पे, उसको फिर से कंप्लीट हटाकर वहाँ पर फिटिंग को भी नया देना पड़ता है, ताकि इट शुड बी मेंटेन्ड एयर सील्ड सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपर्ली थ्रू आउट द प्रोसेस. ऐसे लीकेज ना, एयर लीकेज ना हो बेसिकली. तो सर उसको ओरिंग भी बोलते हैं ना. इट इज कॉल्ड ओरिंग. ओरिंग भी बोलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ना. बिल्कुल. Is it clear? Any doubt? यस सर. No, sir. Okay, let us move further. See, these are the diagram of the filters when it is being removed after giving such some 1000 kilometer of service to the vehicle. देखो किस तरह से दिखता है, कैसा हो जाता है कंडीशन. देख रहे हो? यस सर. तो ये किस तरह से प्लेस्ड था, ये तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं. ये इन्वर्टेड फॉर्म में रहता है ना, ये अंदर में रहता है इंजेक्शन का, इंजेक्टर के अंदर में रहता है ये फिल्टर घुसा हुआ. Yes, sir. Right. So this is can be replaced easily, and this is the only part which is replaced in fuel injection system. For some time support दे देता है, but after some time it is required that we should change the complete EFI system. So it is a costly one. इसलिए you can see that BS6 engines और BS6 vehicles has become more costlier than BS4 vehicles. इसी सब के चलते. Yes, sir. कॉस्ट बढ़ा है ना गाड़ियों का. Yes, तो due to this one. यस सर. अरे सर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्यूल आपका अगर टैंकी में कम हो जाए एकदम, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है. बिल्कुल सप्लाई नहीं दे पाएगा ना कंटिन्यूअस. तो इसमें हम लोगों को फ्यूल का कैपेसिटी का बहुत ध्यान देना है. पहले क्या होता था, हम लोग चौक ले लेते थे, रिजर्व में चला जाता तो गाड़ी चलता था ना. यस सर. इसमें अगर गाड़ी रिजर्व में गया ना, गाड़ी रुक जाएगा, चलेगा नहीं. इसमें चौक भी नहीं है ना सर. नहीं, चौक भी नहीं है, तो तुम इसका स्टार्ट कर पाओगे ना, गाड़ी चल पाएगा. सिस्टम को एक बार ही चेंज करना पड़ेगा अगर वो फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद. हाँ, उससे बचने के लिए भाई, व्हाट इज द प्रोसेस, वी शुड हैव अ वेरी क्लोज आई ऑन आवर फ्यूल लेवल ऑलवेज. Yes, व्हाट इज द फ्यूल लेवल, बिफोर गोइंग डाउन यू शुड fill it the tank properly, timely. Then only the vehicle will run properly all the time. Otherwise, it will start creating problem. ठीक है. कोई एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. Yes, sir. एडवांटेज है कि हमारा पोल्यूशन कम होगा, माइलेज ज्यादा मिलेगा. लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? डिसएडवांटेज वी आर हैविंग वेरी ह्यूज सर्विसिंग प्रॉब्लम. फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है सर इसमें. हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हुई तो मैंने बोला ना, माइलेज ज्यादा मिलेगा. माइलेज ज्यादा तो दे रहा है. हाँ, माइलेज ज्यादा देगा, लेकिन सर्विसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. सर्विसिंग टाइमली कराना पड़ेगा. मेंटेनेंस मेंटेनेंस ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर हैविंग ह्यूज मेंटेनेंस. दिस इज द प्रॉब्लम. और सो एवरीथिंग है, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कहावत है, प्लस माइनस हर किसी के साथ है.
यस सर। तो अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसके साथ कुछ खराब भी आएगा साथ में, तो यू कैन नॉट गो विथ ओनली पॉजिटिविटी ऑलवेज। यस ओके, बोथ कम्स टुगेदर ऑलवेज। तो नॉट डिपेंड अपॉन यू कंप्लीटली हाउ यू कंसीडर, तुम कैसे उसको लेते हो तुम पे डिपेंड करता है। ओके, so let us not talk about these topics, let us move further. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर व्हाट हाँ API प्लीज, सर। बोलो बोलो। सर इन फ्यूल इंजेक्टर वी हैव ओनली फ्यूल सर, but for combustion in engine we require air sir. For where from the air will enter in the air combustion chamber sir? उसका सप्लाई दिया हो रहता है इनटेक वाल्व में। वी आर शोइंग, आई एम शोइंग यू द डायग्राम, जस्ट वेट। बिना एयर का थोड़ी चलेगा, तब तो हमारा Yes, पूरा sir. फ्यूल जल ही जाएगा। Yes sir, you told me sir only air will be a petrol is free. See, this is the electronic overview how it is working basically। तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा देखो क्या लगा हुआ है, ये क्या है? प्लग। इट इज स्पार्क Spark प्लग, plug sir. नॉट Spark ओनली plug प्लग, sir. इट इज स्पार्क प्लग। Spark plug. यस, राइट राइट राइट। हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारा इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। Okay sir. और ये हमारा वाल्व है, इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। Intake for exhaust valve. ठीक है, तो यहाँ देखो कि हमारा जो ये है इंजेक्शन सिस्टम बहुत ही सामने लगा हुआ है इसका। इससे Yes, क्या sir. होता है, इससे फायदा क्या है हम लोगों का? इनिशियली जब हम लोग पहले गाड़ी यूज करते थे उसमें कार्बोरेटर हुआ करता था, तो कार्बोरेटर का Yes, डिस्टेंस कंबशन चेंबर से बहुत दूर था, तो उतना दूर से ट्रेवल होते होते क्या होता था, हमारा जो फ्यूल है वो थोड़ा ठंडा हो जाता था, तो उससे क्या होता था, बर्निंग Sir, में प्रॉब्लम in आता था। unburnt हैव यू fuel. हर्ड दिस वर्ड्स, Unburnt नॉकिंग, fuel. नॉकिंग ऑफ द इंजन, नॉकिंग सुने हो? नॉकिंग, Knocking. यस सर, नॉकिंग सिस्टम। नॉकिंग एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो कि होता है गाड़ियों में, जिसके चलते गाड़ी ठीक से रन नहीं कर पाता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, माइलेज कम हो जाता है गाड़ियों का। तो उसी सबको दूर करने के लिए क्या किया गया, कार्बोरेटर को हटा दिया गया, इंजेक्शन सिस्टम को कार्बोरेशन चैम्बर के सामने ले आया गया ताकि उसको टाइम ही कम दिया जाए। यहाँ पे देखो जो हमारा है, यहाँ पे जो इंजेक्शन कर रहे हैं हम लोग, इस सप्लाई को कर रहे हैं, यहाँ पे एयर भी आ रहा है, एयर और फ्यूल मिक्सर डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई मिक्सर हो रहा है, लेकिन इट इज गेटिंग वेरी लेस टाइम टू ट्रेवल, तो डायरेक्ट इंजेक्ट हो जा रहा है फिर अंदर, तो उसको ट्रेवल करने का टाइम बहुत ही कम हम दे रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो? Yes, Yes, लेट sir. अस मूव ऑन टू नेक्स्ट डायग्राम, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पहले मेरिट्स देख लेते हैं, मैं समझाऊंगा, डायग्राम है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन? लेट अस गो थ्रू दिस पॉइंट्स। एब्सेंस ऑफ वेंचुरी, नो रेस्ट्रिक्शन इन एयर फ्लो, हायर वॉल्यूम एयर टॉर्क, पावर इसका कोई झमेला नहीं है, जस्ट वी आर हैविंग इन कार्बोरेटर, राइट। हॉट स्पॉट फॉर प्रीहीटिंग, कोल्ड एयर एलिमिनेटेड, डेंसर एयर एंटर करता है डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में, manifold branch pipes not connected with the mixture preparation, for example MPFI engines. Next, better acceleration response. Next, fuel automation generally improved because we are having a very good spray system which is present in injection system. Injection system जो spraying होता है बहुत जी comparable to carburetor system, it is very much advanced form, so automation of the fuel will be done very much high rate, बहुत ही अच्छी से और बहुत ही हाई रेट में होगा, तो फ्यूल बहुत ही अच्छे से ऑटोमाइज होगा। ऑटोमाइजेशन क्या है? डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड फ्यूल ऑटोमाइजेशन? यस सर। व्हाट इज इट? सर फ्यूल जो है प्रॉपर काम करेगा सर। नहीं, ये इसका मीनिंग नहीं होगा। एनीवन एल्स? नो आइडिया, नो वन? See what does atom means? It is a very small particle. Atom, atom, Yes, sir. atomization. फ्यूल का एटम किया जा रहा है, मतलब it is breaking into very small parts, very small droplets, and we can see in physical form as a vapor. जब स्प्रे करते हैं हमको वेपर टाइप का दिखता है ना, कोई भी पानी को वगैरह हम स्प्रे Yes, करें, sir. जिससे देखोगे पानी पौधों में देने के लिए पानी को यूज किया जाता है, स्प्रे करते हैं हम लोग, तो देखोगे जब स्प्रे करता है हम लोग प्लांट्स पे, Yes, तुमको sir. नजर आता है जैसे वाटर वेपर बन गया, एकदम ही स्प्रे कर एकदम पतला पतला, लेकिन वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में निकलता है। इट इज नॉट वेपर फॉर्म, बट वी सी फिजिकली एज ए वेपर। हमको लगता है कि वेपर टाइप का निकल रहा है, धुआं धुआं निकल रहा है, तो वही चीज Yes, है sir. फ्यूल एटोमाइजेशन, टू ब्रेक दैट फ्यूल इनटू सच ए स्मॉल पार्ट that physically it will resemble as a vapor form and it is easy to burn quickly, it can burn quickly, जल्दी जल सकता है ना। Yes, sir.
So that is called fuel atomization, which is generally improved in injection system comparable to carburetor system. Okay, let us move further. Use of greater valve overlap. ठीक है. Use of sensor to monitor operating parameters. Gives accurate matching of air fuel requirements. Improves power. Reduces fuel consumption and emission. These are the main motives which are being achieved by using fuel injection system. This is the purpose for using BS6 engines nowadays. इसीलिए BS6 को यूज किया जा रहा है. These are the all purpose. Yes sir, yes. ये इसका मेरिट है. Next, precise in metering fuel in pots. Always precise fuel distribution between cylinders. For example, MPFI engines. What are the other merits? Fuel transportation in manifold are not required. So no valve wetting. जो मैंने अभी बताया कि कार्बोरेटर अगर दूर रखा रहता था, फ्यूल ट्रेवल करते हुए आता था, फ्यूल ट्रांसपोर्ट होते हुए आता था, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन लगता था कार्बोरेटर से कंबशन चैम्बर तक. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो हमारा कंबशन चैम्बर के सामने या कंबशन चैम्बर के ऊपर एज पर रिक्वायरमेंट उसका प्लेसिंग किया जाता है. फ्यूल सर्ज ड्यूरिंग फास्ट कॉर्नरिंग और हैवी ब्रेकिंग एलिमिनेटेड. जो मैंने अभी बताया, फ्यूल सर्ज ड्यूरिंग फास्ट कॉर्नरिंग और हैवी ब्रेकिंग, मैंने एक फिनोमेना यूज किया, एक वर्ड नॉकिंग. डू यू रिमेंबर? यस सर. नॉकिंग क्या होता है? कैन एनीवन डिस्कस? डू यू हैव एन आइडिया? सर वो जो ये फ्यूल ब्रेकिंग सिस्टम में जो है, इंजन का ब्रेकिंग सिस्टम दूर करता है, इसलिए नॉकिंग सिस्टम हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं है. ये फ्यूल नॉकिंग जो होता है ना, कंबशन चैम्बर के अंदर का पार्ट है. तो कंबशन चैम्बर के अंदर में ऐसा क्या फिनोमेना होता है? सर वो जो वाइब्रेट करता है ना अनबर्न हो इंजन में जाता है सर. सर. नहीं, अनबर्न्ड फ्यूल्स कंबशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सुने हो? यस सर, अनबर्न फ्यूल सर. अनबर्न फ्यूल जो रह जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर में, वही हमारा फर्दर कंबशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इससे चलते वाइब्रेशंस आता है और उसी फिनोमेना को नॉकिंग कहते हैं सिंपली. तो वो चीज जब नहीं होगा तो हैवी ब्रेकिंग प्रॉब्लम नहीं होगा. यस सर. ठीक है. सो दिस इज द रीजन. लेट अस मूव फर्दर. एडेप्टेबल एंड सुटेबल फॉर सुपरचार्जिंग. सुपरचार्जिंग है फिनोमेना. टर्बोचार्जर इंजन सुने हो ना? सुपरचार्ज इंजन टर्बोचार्जिंग है. यस सर, टर्बोचार्जर. गाड़ी में पावर बढ़ाने के यूज किया जाता है. यस. कहाँ पर यूज कर, कहाँ पे सुने ऐसे वर्ड्स? ये सर ये पिकअप वगैरह में यूज होता है, 4 चक्का वगैरह यूज होता है. बिल्कुल, राइट. इंक्रीज पावर एंड टॉर्क तो समझ में आ ही रहा है. सी दिस इज द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. कहाँ पे लगता है? यू कैन सी दिस डायग्राम. Here we are having the combustion chamber placed over here. यहाँ पे combustion chamber है. ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है. फ्यूल इंजेक्टर कहाँ पे रखा गया? देखो एकदम सामने में. जब स्प्रे करेगा डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर स्प्रे करेगा, ये हमारा खुलेगा. इंजेक्शन जब होगा डायरेक्ट स्प्रे करेगा और साथ ही साथ एयर का इंटेक भी आएगा और मिक्स होते हुए अंदर जाएगा. तो हम लोग उसको टाइम दे रहे हैं ट्रेवल करने का थोड़ा सा भी? नहीं सर, ज्यादा नहीं. इसी के चलते हम लोग को एफिशिएंसी और माइलेज बढ़ता है. तो यहाँ पे तो हमको हवा भी तो चाहिए. इंटेक मैनिफोल्ड देखो लिखा हुआ है ना, इंटेक फ्लो. यहाँ से तो हवा आ ही रहा है. बिना हवा का मिक्सिंग का हम कैसे चला सकते? तो हमारा फ्यूल तुरंत जल जाएगा पूरा. ठीक है. तो इसका प्लेसमेंट हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं. यहाँ से हमको डायग्राम समझ में आ रहा है क्लियर कट? ये हमारा इंटेक वाल्व है, ये हमारा इंजेक्शन सिस्टम है, इंजेक्टर है जो रखा गया है. साथ ही साथ साइड से हमारा एयर फ्लो भी आ रहा है. एयर फ्लो आकर यहाँ साथ ही साथ मिक्स हो रहा है और डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली. अभी भी कोई डाउट है कि समझ में आ गया? क्लियर है? नो सर, गॉट इट. नो सर, नो डाउट. I think everyone is having no doubt now. It is very much clear how the injection system is being placed and how it is basically works. Okay. यस सर. देखो इस तरह से भी रखा जाता है, थोड़े से दूर करके. मगर जैसे दूर हम करेंगे तो यहाँ पर डर्ट्स जमने लगता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है. दिख रहा है डर्ट्स? ये हमारा कहाँ से आ रहा है? हवा के साथ आ रहा है. तो ये हमारा बैठ के भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है. इसलिए देखो ये हमारा हम कितना कम से दूर हो गया. पर इनिशियली जब हम रखें तो देखो यहाँ पे एकदम सामने में रखें. अगर ऐसा प्लेसिंग रहेगा, इसलिए दिखाया जा रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा इंजन में. अगर हम इसको थोड़ा सा भी दूर प्लेस करते हैं इस तरह से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इंजेक्शन सिस्टम इज प्लेस्ड वेरी मच नियरर टू द कंबशन चैम्बर. और मेनी सिस्टम्स यू विल सी इट इज प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द कंबशन चैम्बर.
लेकिन ऐसा अरेंजमेंट होता है कि साथ जब ये हमारा ओपन होगा साथ में एयर जो सप्लाई होता है वो भी साथ में ओपन होगा, वो दोनों मिक्स होकर अंदर में जलेगा, अकेले कभी नहीं जलेगा तो हमको नुकसान कर देगा ना, अकेले जलेगा तो कंप्लीट फ्यूल जल जाएगा, तो माइलेज दे ही नहीं पाएगा हवा नहीं रहेगा तो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। Okay. Moving further, modeling of fuel injection. What are the models? The model needs to predict the spray process, the distribution and evaporation of droplets तुमको चाहिए, the fuel layer formation and transmission in the pot. The governing equation of the motion and droplet equations are used to develop a model. The rate of evaporation of liquid fuel is calculated by determining the fuel mean drop diameter, which is in short is said as SMD, and characteristics evaporation time, tau evaporation. Given the given equation below, क्या होता है? ये इक्वेशन है dmv by dt is equal to ml minus mv by tau ev. इवेपोरेशन, ठीक है, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालना है अगर हमको तो ये फॉर्मूला से निकाला जाता है। इसमें क्या क्या है, वेयर ml क्या है, लिक्विड फ्यूल कितना मास, इज मास ऑफ लिक्विड फ्यूल, mv क्या है, इज द मास ऑफ फ्यूल वेपर, प्रोसेस में दिया रहेगा, एंड टाउ इवेपोरेशन क्या है, इट इज द टाइम फैक्टर,